Hello students, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathdwara. In the earlier video, we have studied about the characteristics of superphylum Aschelminthes. In the present video, we will discuss about classification of superphylum Aschelminthes. As we know, Aschelminthes are pseudocoelomate, bilaterally symmetrical, triploblastic, unsegmented, vermiform, organ system grade of constitution with complete digestive tubes. Aschelminthes includes a heterogeneous assemblage of different animals, hence it has been classified differently by different zoologists. According to L.H. Hyman, phylum Aschelminthes is classified into 6 classes, namely Rotifera, Gastrotricha, Chinorhyncha, Priapulidia, Nematoda, and Nematophora. But Storer and Usinger in the year 1971 have regarded different classification of Aschelminthes as separate phyla and rank Aschelminthes as superphylum. Aschelminthes के जीव हमें ज्ञात है कि सूडोसुलोमेट द्विपार्श्व सममित त्रिजनन स्तरीय अखंडित कृमि के आकार के जिनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक कंप्लीट या पूर्ण आहार नाल युक्त जीव होते हैं। एस्केहेलमिंथीज एक विभिन्नताओं से भरे हुए जंतुओं का समूह है जिसे अलग अलग जूलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है। हाइमन ने 1951 में एस्केहेलमिंथीज को फाइलम माना और उन्होंने इसे 6 वर्गों में विभाजित किया, किंतु स्टोरर और यूसिंजर ने 1971 में इसे एक सेपरेट ग्रुप माना जिसमें एस्केहेलमिंथीज को एक सेपरेट फाइला मानते हुए इसे सुपर फाइलम का नाम दिया। जो अभी हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो स्टोरर और यूसिंजर के आधार पर वर्गीकरण जो फॉलो किया गया था उसी को आधार मानकर उसका वर्गीकरण हम यहाँ भी कर रहे हैं। Storer and Usinger divided superphylum Aschelminthes into 5 phylums, namely Rotifera, Gastrotricha, Chinorhyncha, Nematomorpha, and Nematoda. First, we will discuss about phylum Rotifera. The word Rotifera is derived from 2 Greek words in which the first word is rota, which means wheel, and the second word is fera, which means to bear. These animals are microscopic in size and they are found in ponds, lakes, and streams. Rarely, they are also present in oceans and they are commonly called as wheel bearers. Body wall thickened into stiff plates or lorica into which head may be present. Head may be retractable. Anterior end of the body is having ciliated corona or a wheel-like organs which is used for feeding and locomotion. Post-anal tail with 2 toes and adhesive glands for attachment are present in these animals. The body musculature of rotifers includes longitudinal and transverse muscle bands and strands. एस्केहेलमिंथीज का जो ये वर्गीकरण है वो स्टोरर एंड यूसिंजर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने इसे सुपरफाइलम मानते हुए 5 फाइलम में विभाजित किया है। इन पांचों फाइलम का नाम है रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, नेमेटोमोर्फा एवं नेमेटोडा। फर्स्ट फाइलम इज रोटिफेरा। रोटिफेरा शब्द का विकास
लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है, जिसमें पहला शब्द रोटा और दूसरा शब्द फेरे है। रोटा शब्द का अर्थ चक्र होता है और फेरे शब्द का अर्थ धारी होता है, अर्थात ये जंतु चक्रधारी जंतु कहलाते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी जंतु हैं जो सामान्यतया तालाबों, झीलों और स्रोतों में पाए जाते हैं। कभी कभार ये समुद्रों में भी उपस्थित होते हैं। इनके शरीर की भित्ति मोटी और कठोर होती है और इस बॉडी वॉल के द्वारा इसका जो हेड है या सिर है, जिसमें सिर पुनः खींचकर आता है, इसके अग्रस्त सिरे पर पक्षमाभि किरीट या चक्र अंग उपस्थित होता है, जिसका प्रयोग भोजन ग्रहण करने हेतु एवं गमन करने हेतु किया जाता है। गुदपच पूंछ में दो अंगूठे व आसंजन हेतु आसंजक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। शरीर का पेशीन्यास में अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ पेशीवलन और डोरे सम्मिलित होते हैं। The digestive system of rotifers is provided with a grinding organ which is named as mastax, and it is lined internally by a strong cuticle. The excretory system with two protonephridia and two protonephridial tubes are present which empty into bladders. The nervous system of three major ganglion and nerves is found in rotifers. Sensory organs are present in the form of antenna and eye spots. Rotifers males are smaller than the rotifers females. Parthenogenesis is very common among rotifers. The females are oviparous and the development is direct without any larval stage. रोटिफेरा के जो जीव हैं, इनमें पाचन तंत्र में दृढ़ क्यूटिकल से आस्तरित मेस्टेक्स नामक अशनकारी अंग उपस्थित होता है। उत्सर्जन हेतु इन जीवों में आदिवृक्क सहित दो आदिवृक्क नलियां जो एक आशय में खुलती हैं। इनका तंत्रिका तंत्र, जिसमें तीन बड़ी गुच्छिकाएं अर्थात गैंग्लियन और तंत्रिकाएं उपस्थित रहती हैं। ज्ञानेंद्रियों में इनमें स्पर्शक और नेत्र चिन्ह के रूप में ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। मादा की अपेक्षा नर का आकार छोटा होता है और इन जंतुओं में अनिषेक जनन सामान्य प्रक्रिया होती है। पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन का मतलब यह है कि अंडाणु बिना निषेचित हुए भी एक नए जीव का विकास कर सकता है। ऐसी अवस्था रोटिफेरा के जंतुओं में देखने को मिलती है। मादाएं इसकी अंडजनक होती हैं और इनका जो विकास है वो प्रत्यक्ष विकास होता है, जिसमें लार्वा अवस्थाओं का पूर्णतया अभाव होता है। उदाहरण फिलोडाइना, एस्प्लैंका एवं रोटेरिया आदि इसके उदाहरण हैं। The second phylum of superphylum Aschelminthes is Gastrotricha. The word gastrotricha is originated from two Latin words in which the first word is gaster, which means stomach, and the second word is trichos, which means hair. These animals are microscopic. They may be present in marine water and fresh water. The body wall is with cuticle bearing short, curved and dorsal spines. Corona is absent and cilia on the ventral surface are present for the purpose of locomotion. Posterior end is forked and with adhesive tubes and glands for attachment.
The body musculature includes 6 pairs of longitudinal muscles. सुपरफाइलम एस्केलमेंथीस का दूसरा फाइलम है गैस्ट्रोट्राइका। गैस्ट्रोट्राइका शब्द का विकास लैटिन भाषा के दो शब्दों के मिलने से हुआ है, जिसका पहला शब्द है गैस्टर, जिसका अर्थ होता है आमाशय, और दूसरा शब्द है ट्राइकॉस, जिसका अर्थ होता है बाल। गैस्ट्रोट्राइका के जीव सूक्ष्मदर्शी, समुद्रवासी या स्वच्छ जलवासी होते हैं। इनके शरीर की भित्ति पर छोटे छोटे वक्रित कांटों सहित क्यूटिकल उपस्थित होती है। इन जंतुओं में किरीट या कोरोना का अभाव होता है। प्रचलन हेतु इनके शरीर के अधर तल पर पक्षमाप या सीलिया उपस्थित होते हैं। शरीर का पश्च शिरा शाखान्वित होता है तथा आसंजन हेतु आसंजक नलियां व ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इनके शरीर के पेशीन्यास में 6 जोड़ी अनुदैर्ध्य पेशियां उपस्थित होती हैं। The mouth is surrounded by bristles in the animals which belongs to phylum Gastrotricha. The pharynx is triradiate and muscular. The excretory system consists of 2 protonephridia. The nervous system with saddle-shaped ganglion and 2 lateral nerves are present in gastrotrichs. The animals may be dioecious or monoecious, and parthenogenetic females are present in this phylum. The development is direct. It means there is no larval stage in the development or the life cycle of these animals. The young and the adults look alike. The examples are Chetonotus and Macrodaces. गैस्ट्रोट्राइका के जंतुओं के मुख के चारों ओर शूक उपस्थित होते हैं। इनकी ग्रसनी त्रिअरी और पेशीय होती है। उत्सर्जी तंत्र में इनके 2 आदिवृक्क उपस्थित होते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में गद्दी के आकार की एक गुच्छिका तथा 2 पार्श्व तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। ये जीव एक लिंगी अथवा द्विलिंगी हो सकते हैं। ये जो इसके स्वच्छ जल में रहने वाली मादाएं होती हैं, सामान्यतया स्वच्छ जलीय मादाओं में अनिषेक जनन पाया जाता है। इनका विकास प्रत्यक्ष विकास होता है, अर्थात लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। अंडे से निकले नवजात शिशु वयस्क के समान ही दिखाई देते हैं। उदाहरण कीटोनोटस और मैक्रोडेसिस। The third phylum of superphylum Aschelminthes is Kynorhyncha. The word Kynorhyncha is derived from 2 Greek words in which the first word is kyneo, which means moors, and the second word is rhynchos, which means beak. Kynorhynchans are marine, microscopic, worm-like animals. In these animals, superficial segmentation of the body can be seen. The body is divided into 13 or 14 overlapping rings, which are called as zonites. The body surface is provided with spiny cuticle, but no cilia are present. The mouth cone or the head is protrusible and covered with scalets. A pair of adhesive tubes is present in front part of the ventral surface. The pseudocoel is filled with a fluid, the pseudocoelom, which is having amoebocytes in it. सुपरफाइलम एस्केलमेंथीस का तीसरा फाइलम काइनोरिंका है। काइनोरिंका को इकाइनोडेरा भी कहा जाता है। काइनोरिंका शब्द का विकास ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के द्वारा हुआ है, जिसमें प्रथम शब्द काइनियो, जिसका अर्थ होता है अधिक, और दूसरा शब्द रिंकॉस, जिसका अर्थ होता है बीक या चोंच। सामान्यतया ये जंतु
समुद्रवासी होते हैं और इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं और इनका शरीर कृमि के समान दिखाई देता है। ये समुद्रवासी सूक्ष्मदर्शी कृमि समान जंतु होते हैं। इनका शरीर 13 या 14 आभासी खंडों से बना हुआ होता है जो एक दूसरे को ढकते हुए वलय के रूप में उपस्थित होते हैं। शरीर की सतह पर कांटेदार क्यूटिकल उपस्थित होती है, किंतु इनमें सीलिया अथवा पक्षमाभ का अभाव होता है। इनके मुख शंकु अथवा जो सिर है वो बहिर्सारित होता है, बहिर्सारित होने में सक्षम होता है और स्केलिडों से आच्छादित रहता है। इनके शरीर के अग्र अधर सतह पर एक जोड़ी आसंजक नलियां पाई जाती हैं। इनकी गुहा, जिसे कि हम कूट गुहिका कहते हैं, उस कूट गुहिका में कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें एमीबोसाइट्स कहते हैं और एमीबोसाइट्स के साथ साथ इसमें द्रव भी उपस्थित होता है। The nervous system consists of a nerve ring with a ventral nerve cord with a ganglion in each zonoid. Eye spots are also present in some of the animals of phylum Cynorhyncha. The digestive system is complete. It means it starts with mouth and ends with the anus. The digestive system here is provided with salivary glands. The animals are dioecious and the gonads as a pair of tubular sacs present in them. Pineal spicules are present in males. Fertilization is internal and metamorphosis with several larval stages are present. The development includes a series of juvenile stages. The examples are echinoderms and pycnosphes. इनके तंत्रिका तंत्र में प्रत्येक देहांश में एक गुच्छिका के साथ अधर रज्जु सहित तंत्रिका वलय उपस्थित होता है। इनका जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र होता है जो कि मुख से प्रारंभ होकर गुदा छिद्र पर आके अंत होता है। इनके पाचन तंत्र में लार ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। ये जीव एक लिंगाश्रयी होते हैं और इन जंतुओं में जनन ग्रंथियां एक जोड़ी पाई जाती है जो कि नली के समान कोशों की भांति होती हैं। नर जंतुओं में पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन जंतुओं में निषेचन अंतः निषेचन होता है, अर्थात मादा के शरीर में ही अंडाणु निषेचित होते हैं और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया में या विकास की प्रक्रिया में इनमें कई लार्वा अवस्थाएं डेवलप होती हैं। एक अडल्ट एनिमल बनने से पूर्व या एक पूर्ण जंतु अंडाणु से निषेचित अंडाणु से पूर्ण जंतु बनने के मध्य में कई सारी स्टेजेस यहाँ ये जंतु पार करते हैं। उदाहरण इकिनोडर्स और पिक्नोफिस। The next phylum is Nematomorpha. Nematomorpha is also called as Gardiacea. The word Nematomorpha is derived from two Greek words in which the first word is nema, which means thread, and the second word is morphe, which means shape. The nematomorphs are commonly called as hairworms. They are found in fresh water. Only one genus, that is Nactonema, is found in marine water. The body of these animals are very long, thin, slender, and cylindrical in shape. The body wall with thick cuticle bearing small papilla is present in these animals. The epidermis is cellular and single-layered. The digestive system is complete in larva, but it degenerates in non-feeding adults. Cloaca
is also present in nematomorphs. एस्केहेलमिन्थीज की चौथी फाइलम नेमेटोमॉर्फा कहलाती है। नेमेटोमॉर्फा शब्द का विकास ग्रीक भाषा के दो शब्दों नीमा तथा मॉर्फी से हुआ है, जिनके अर्थ क्रमशः धागा और आकार है। ये सामान्यतया केशक्रमी कहलाए जाते हैं, जो कि स्वच्छ जल में निवास करते हैं। इनका एक वंश निक्टोनीमा समुद्रवासी होता है। इन जंतुओं का शरीर लंबा, पतला, दुबला और बेलनाकार होता है। शरीर भित्ति पर छोटी छोटी पैपिलियों सहित मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो केवल एक स्तर की कोशिकी एपिडर्मिस यहाँ पर पाई जाती है। इन जंतुओं में जो पाचन तंत्र है लार्वा में पूर्ण होता है, लेकिन वयस्क में यह हासित हो जाता है। नेमेटोमॉर्फा के जंतुओं में अवस्कर विद्यमान रहता है। Pseudocoel mostly filled with a type of cells which are called as parenchyma. Circulatory, respiratory and excretory systems are absent in nematomorphs. The nervous system with a circumentric nerve ring and mid-ventral nerve cord is present. Gonad and gonoducts are paired. Oviducts also open into the cloaca. Juveniles are parasitic in grasshoppers, crickets, and other insects. The examples are Gaudius, Paragaudius, and Nectonema. नेमेटोमॉर्फा के जंतुओं की कूट प्रगृहा अधिकतर पैरेन्काइमा से भरी हुई होती है। इन जंतुओं में परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र का पूर्णतया अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र में एक परिआंत्र तंत्रिका वलय और एक अधर तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है। ये जंतु एक लिंगाश्रयी होते हैं। इनकी जनन ग्रंथियां तथा जनन वाहिनियां युग्मित होती हैं, अर्थात एक जोड़ी में होती हैं। नर के अंदर पीनियल स्पिक्यूल्स का अभाव होता है और इनकी अंडवाहिनियां मादा के अंदर अवस्कर में खुलने वाली होती हैं। इनकी जो किशोर प्राणी टिड्डियां हैं, वे झींगर आदि कीटों में परजीवी होती हैं। उदाहरण पेरिगार्डियस, नेक्टोनीमा एवं गॉडियस। The last phylum of superphylum Aschelminthes is Nematoda. The word nematoda is derived from two Greek words, in which the first word is nema, which means thread, and the second word is eidos, which means form. The nematodes are also called as threadworms or roundworms. They are aquatic or terrestrial. It means they may be present in water or they may be present on earth. They are free-living or parasitic. It means some of them are free-living animals and some are parasites which remains on the host. The body is elongated, round worms. The body elongated, cylindrical and unsegmented. It means the body is not divided into any types of the segments. The body wall is thick with cuticle and the epidermis is cellular or it may be syncytial. The longitudinal muscles are present in the musculature in 4 bands. Cilia are absent in these animals. Circulatory system and respiratory system is also absent in these animals. The digestive system is complete with muscular pharynx and various glands. The excretory system of glandular organs or canals or both is present in nematodes. Superphylum Aschelminthes का पांचवा फाइलम नेमेटोडा है। नेमेटोडा शब्द का विकास ग्रीक भाषा से हुआ है
और इन्हें सामान्यतया सूत्रकृमि या गोलकृमि के नाम से जाना जाता है। ये जीव जलीय या स्थलीय दोनों हो सकते हैं। इनमें कुछ स्वतंत्र जीवी तथा कुछ परजीवी हैं जिनका आकार कृमि के समान होता है। इनका शरीर लंबा, बेलनाकार और अविखंडित कृमि तुल्य होता है, जिनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर दोनों ओर पर नुकीला होता है। इन जंतुओं का जो शरीर है वह त्रिजनन स्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनके शरीर में मोटी प्रतिरोधी क्यूटिकल उपस्थित होती है तथा जो एपिडर्मिस है वह कोशिकीय अथवा बहुकेंद्र की हो सकती है। इनके शरीर के पेशियों में केवल अनुदैर्ध्य पेशियों के रेशे ही पाए जाते हैं जो 4 वलय के रूप में उपस्थित होते हैं। ट्रूसीलोम इनमें अनुपस्थित होती है और यहाँ पर चिरस्थायी कोरक गुहिका या कूट प्रगुहिका विद्यमान रहती है, जिसमें मीजोडर्म या मध्य चर्म का अभाव होता है। इन जंतुओं में पक्षमाभ यानी कि सीलिया का भी अभाव होता है और परिवहन तंत्र तथा श्वसन तंत्र का भी अभाव होता है। इन जंतुओं के अंदर गुदा, पेशीय ग्रसनी और अपेशीय आंत्र सहित पूर्ण पाचन तंत्र उपस्थित होता है। उत्सर्जन हेतु इनके अंदर ग्रंथीय अंग या नाली या दोनों उपस्थित होती हैं, किंतु ज्वाला कोशिकाओं का अभाव होता है। Nervous system with circumentric ring and anterior and posterior nerves is there. Sense organs are very simple. These animals are dioecious. Males are provided with pineal spicules and they are smaller in size as compared to the females. Gonads are either 1 or 2. Male genital ducts leads into the cloaca and the female genital duct opens with a separate opening. इन जंतुओं में आंत्रोपरितंत्रिका वलय और अग्र तथा पश्च तंत्रिकाओं का बना हुआ तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इनके संवेदी अंगों का विकास बहुत कम होता है और छोटी छोटी पैपिला या एम्फिडो के रूप में शरीर के दोनों सिरों के निकट ये पैपिलाएं उपस्थित होती हैं। ये जंतु डायोशियस होते हैं, अर्थात इनमें लिंग अलग अलग पाए जाते हैं। साथ ही इनमें लैंगिक द्विरूपता भी देखने को मिलती है। मादा की अपेक्षा नर का आकार छोटा होता है। इनकी जनन ग्रंथियां सरल और कुंडलित होती हैं तथा नर जनन ग्रंथि अवस्कर में खुलती है तथा मादा जनन ग्रंथि अन्य छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। Fertilization in nematodes is internal fertilization. The development is usually direct. It means it does not involve any larval stage in their life cycle. No asexual reproduction or regeneration is found in nematodes. The examples are Ascaris, Necator, Vaucheria, Trichinella and Enterobius. नेमेटोडा के जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया अंतः निषेचन के द्वारा पूर्ण की जाती है, अर्थात मादा जंतु के शरीर में ही अंडाणुओं का निषेचन होता है। विकास की प्रक्रिया इसमें सामान्यतया प्रत्यक्ष प्रकार की होती है, अर्थात इन जीवों में इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था का अभाव होता है। इन जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन भी नहीं होता है और साथ ही साथ इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी नहीं पाई जाती है। उदाहरण एस्केरिस, वाउचीरिया, ट्राइकिनेला एवं एंटीरोबायस। तो इसके साथ ही हमारा सुपरफाइलम एस्केहेलमिंथीज का वर्गीकरण पूरा होता है। अगले वीडियो में हम किसी अगली फाइलम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।